گنبد پہ عالم فدا ہے، فلک جیسے چومے زمین مدینہ، تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، فدا تجھ پہ میں خاک کے شہر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام صراط مستقیم کے ساتھ قاضی جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا محمد اسلم زاہد صاحب، جو کہ خطیب ہیں جامعہ مسجد عثمانیہ اینڈ ایجوکیشن سینٹر شیفیلڈ کے، اس کے علاوہ جمعیت علماء کے برطانیہ کے وائس چیئرمین بھی ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ایک ترتیب سے ہوتا ہے، ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کلام پاک کی تلاوت سے، اور آج مولانا صاحب جو آپ کو تلاوت کر کے سنائیں گے سورہ فاطر کی آیات 5 سے 7 تک، اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں فون کرنا چاہیں کوئی ذکر یا وظیفہ کے حوالے سے تو بھی آپ کر سکتے ہیں، کچھ پریشانی آپ کو ہو اور مولانا صاحب سے آپ بات کرنا چاہیں تو ہمیں ضرور فون کر سکتے ہیں آپ۔ اور چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں مولانا صاحب، سورہ فاطر آیت 5 سے 7 تک۔ مولانا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی، اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں ڈالے بڑا دھوکے باز یعنی شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک اس کا گروہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تم سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جو کہ حق کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی جزاک اللہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے سورہ فاطر کی آیات 5 سے 7 تک اور اس کا ترجمہ۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی
सवाल शरी लिहाज से है जिसको आप समझना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि मौलाना साहब आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तो हमेशा प्रोग्राम में हम कलाम पाक की तिलावत के बाद चलते हैं ज़िक्र और वजीफ़े के हवाले से। जो ज़िक्र और वजीफ़ा जनाब मौलाना साहब हमें बताएंगे आज के लिए, तो चलते हैं मौलाना साहब की तरफ। जी मौलाना साहब, आज के लिए नाज़रीन, आज हम आपको एक अहम ज़िक्र और वजीफ़ा और एक अमल बता रहे हैं। ये जिन मकासद के लिए पहले हम वो आपको बता देते हैं। ये ज़िक्र और वजीफ़ा और ये अमल है इसलिए कि अगर ज़ौजैन में आपस में उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं तो आपस में इस्लाह के लिए और ताल्लुकात ठीक करने के लिए ये अमल है। इसी तरह अगर बच्चे राय रास्त पे नहीं हैं तो उनके लिए आप इस ज़िक्र और वजीफ़ा के ज़रिए से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें राय रास्त पर लाएंगे। अच्छे रिश्तों के हुसूल के लिए भी ये अमल और ज़िक्र और वजीफ़ा है जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसी तरह दीगर हाजात की तकमील के लिए भी आप ये ज़िक्र और वजीफ़ा कर सकते हैं। और यह ज़िक्र इस तरह है कि यह एक नमाज है, 4 रकत नमाज हाजत की नीयत से आप पढ़ेंगे। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद अल्हम्दु शरीफ के बाद आप ये पढ़ेंगे रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। यह 17वां पारा सूरह अंबिया के 6ठे रुकू की आयत है। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, यह दुआ है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की। दूसरी रकत में आप सूरह फातिहा के बाद दूसरी आयत 100 बार पढ़ेंगे और वो यह है रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदै व अन अअमला सालिहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। यह सूरह नमल दूसरे रुकू की आयत है और यह दुआ है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तीसरी रकत में आप पढ़ेंगे सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा और यह आयत है रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। यह सूरह क़सस के तीसरे रुकू की आयत है और यह दुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। और चौथे रकत में आप पढ़ेंगे रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदै व अन अअमला सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। यह 26वां पारा सूरह अहक़ाफ़ दूसरे रुकू की ये आयत है और यह भी आप 100 बार पढ़ेंगे। इस तरह 4 रकत नमाज आप पूरी करेंगे और उसके बाद आप 100 मरतबा तस्बीह पर सूरह यासीन की यह आयत पढ़ेंगे सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। यह सूरह यासीन शरीफ की आयत है, यह आप तिलावत करेंगे 100 मरतबा इसका जिक्र करेंगे। और यह 21 दिन का अमल है। जिस मकसद के लिए जो मकासद मैंने आपको बताए हैं आप ये अमल करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला पूरा फरमाएंगे बशर्ते कि फ़राइज़ की पाबंदी हो, हराम कामों से आप बचते रहें और पूरे यकीन और एतकाद के साथ आप ये अमल करें कि अल्लाह ताला की ज़ात कबूल करने वाली है। नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे आज का ज़िक्र और वजीफ़ा। और जैसा आप जानते हैं कि प्रोग्राम में हम हर हफ्ते एक मौजू लेकर आते हैं। आज का मौजू है नशे की हुर्मत और उसके नुकसानात। नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, मसलन शराब का हो सकता है, सिगरेट का हो सकता है, चर्स, अफ़ीम, कोकेन, बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। और मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि आज कल का जो दौर है उसमें हर कम्युनिटी ड्रग्स के हवाले से बड़ी उसकी कैद में जा चुके हों और उसके बाद वापस लौट आए हों और अब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हों, वो हमें फ़ोन करें और अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें ताकि उनके एक्सपीरियंस से कुछ हमारे जो नाज़रीन हैं वो सीख सकें और हम भी कुछ ना कुछ आपसे सीखें। तो जैसा आप जानते हैं नाज़रीन कि इस्लाम की रोशनी से पहले इंसानियत अंधेरों में भटक रही थी। ये अल्लाह ताला का करम है कि उसने अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का एक तोहफ़ा दिया है कुरान मजीद। आज हम
नशे के हवाले से बात करेंगे कुरान सुन्नत और हदीस से कि उनके हवाले से क्या अहकामात हैं नशे के हवाले से। तो चलते हैं आज का बयान सुनते हैं मौलाना साहब के साथ। और मैं ये भी आपको एक बार फिर गुजारिश करता चलूँ कि अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो आप हमें ज़रूर फ़ोन कीजिएगा और ज़िक्र और वजीफ़ा जो है वो मालूम कीजिएगा मौलाना साहब से। तो चलते हैं आज का बयान सुनते हैं। जी मौलाना साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहु बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदु शैतानु युक़िअ बैनकुम अल अदावता वल बग़दा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर व यasuद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नमा युरीदु शैतानु, बेशक शैतान ये चाहता है, अन युक़िअ बैनकुम अल अदावता वल बग़दा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर, कि वो वाक़या करे तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ फ़िल ख़म्रि वल मैसिर, शराब के ज़रिए से और जुआ के ज़रिए से। व यasuद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, और वो ये चाहता है कि तुम्हें अल्लाह की याद से रोके और नमाज से रोके। फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज आओगे। नाज़िर नाज़रीन, अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हैं और अल्लाह ताला ने अपने रसूल रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, सारे अपने मेहरबानी के अहकाम देकर, आसानी के अहकाम देकर, और फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह ताला तुम पर आसानी चाहते हैं और तुम्हें तंगी और तकलीफ़ और दिक्कत और मशक्क़त में नहीं डालने चाहते। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि वयुहिल्लुल्लाहु मुत्तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइथ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वयुहिल्लुल्लाहु मुत्तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइथ, कि जितनी पाकीज़ा चीज़ें, अच्छी चीज़ें और तय्यिबात को हलाल करके बताया, और जितनी खबीस और नाजायज़ और गलत चीज़ें उन सब को हराम करके बताया। ये चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब रसालत में शामिल हैं, और आप जो रोशन दीन लेकर आए उसका ये हिस्सा है कि आपने हर खबीस चीज़ को, हर गंदी चीज़ को, हर नुकसानदेह चीज़ को, हर ज़र्र देने वाली चीज़ को हराम किया और उसे वाज़े करके बताया, और हर पाकीज़ा चीज़ को हलाल किया और उसे वाज़े करके बताया। हमारे यहाँ इस्लाम में कोई चीज़ ऐसी मख्फी नहीं है कि जिसके हराम और हलाल होने में लोगों को शुबा हो और ये वाज़े ना हो सके कि ये हराम है या हलाल है, और हर चीज़ खुली हुई आपने बयान फरमाई। उन्हीं खुली हुई चीज़ों में शराब और जुए की हुर्मत भी है, जिसे कुरान करीम में वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने इसे अपने हुक्म से वाज़े फरमाया और इसे हराम फरमाया, और फरमाया कि इन्नमल खम्र वल मैसिर, कि खमर और मैसिर रिज्सुम मिन अमल शैतान, नजस है और शैतान का अमल है। इसमें फरमाया कि वल अंसाब वल अज़लाम, ये बुत परस्ती और तीर अंदाजी के ज़रिए से किस्मत को निकालना, ये चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। और इनको फरमाया रिज्स, ये नजस हैं, ये गंदी हैं और ये नापाक चीज़ें हैं। नजस से हमेशा आदमी बचता है और उससे दूर रहता है। इन कामों को, कभी कोई चीज़ नजस होती है, कभी कोई अमल नजस होता है। अल्लाह ताला ने इनको नजस करार दिया, जिसमें शराब है, जुआ है और बुत परस्ती है, और ये तीरों के ज़रिए से किस्मत का निकालना। और लोग समझते थे कि जो उसके लिए जो तीर निकल गया उसमें जो लिखा हुआ है वही उसका मुकद्दर है, और इस तरह वो अपनी किस्मत के अंदाजे लगाते थे। अल्लाह ताला ने इन सब को रिजिस कहा और इनको नजस कहा कि कुछ आमाल नजस हैं और कुछ ये चीज़ें नजस हैं जिनसे दूर रहना ज़रूरी है। और फरमाया रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबू, इन चीज़ों से बचो, और लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें फलाह मिले, कामयाबी मिले, नजात मिले। ये इंसान की फितरत है नाज़रीन कि वो फलाह चाहता है, वो कामयाबी चाहता है, वो नजात चाहता है, वो अपनी बेहतरी का रास्ता चाहता है, और वो अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर हमें बताया। और उसके लिए ज़रूरी है कि आदमी इन चीज़ों से दूर रहे और इन चीज़ों से बचे।